আপনারা দেখছেন এস নিউজ বাংলা, মানুষের সাথে মানুষের পাশে। গরু পাচারের চেষ্টা এবার নদিয়া দিয়ে দত্তফুলিয়া বাংলাদেশ বর্ডারে রাতভর বিএসএফ আর গরু পাচারকারীদের বোম গুলির লড়াই। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার এক পাচারকারী, আহত এক বিএসএফ জওয়ান। ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার ধানতলা থানা এলাকার কাছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বাপ সুন্দর বর্ডার এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, দিনকে দিন এই ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই দিন সঞ্জয় কুমার ডিআইজি কৃষ্ণনগর রেঞ্জ, মধুসূদন রাও কমান্ডিং অফিসার 8 ব্যাটালিয়ন, বিপিন পান্থারি কমান্ডিং অফিসার 6-8 ব্যাটালিয়ন এখানে উপস্থিত। ইনসাস রাইফেল থেকে 2 থেকে 4 রাউন্ড গুলি চলে। গরু পাচারকারীরা 2 থেকে 3টে দলে ভাগ হয়ে আসে। ভারত থেকে বাংলাদেশ যাচ্ছিল। বাংলা বর্ডারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হাসান মণ্ডল, বাড়ি ধানতলা থানার ক্যানে বাউনি, গুলিবিদ্ধ। গরু পাচারের চেষ্টা এবার নদিয়া দিয়ে দত্তফুলিয়া বাংলাদেশ বর্ডারে রাতভর বিএসএফ আর গরু পাচারকারীদের বোম গুলির লড়াই। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় গ্রেপ্তার এক পাচারকারী, আহত এক বিএসএফ জওয়ান। ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার ধানতলা থানা এলাকার কাছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত বাপ সুন্দর বর্ডার এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, দিনকে দিন এই ধরনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। এই দিন সঞ্জয় কুমার ডিআইজি কৃষ্ণনগর রেঞ্জ, মধুসূদন রাও কমান্ডিং অফিসার 8 ব্যাটালিয়ন, বিপিন পান্থারি কমান্ডিং অফিসার 6-8 ব্যাটালিয়ন এখানে উপস্থিত। ইনসাস রাইফেল থেকে 2 থেকে 4 রাউন্ড গুলি চলে। গরু পাচারকারীরা 2 থেকে 3টে দলে ভাগ হয়ে আসে। ভারত থেকে বাংলাদেশ যাচ্ছিল। বাংলা বর্ডারের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার হাসান মণ্ডল, বাড়ি ধানতলা থানার ক্যানে বাউনি, গুলিবিদ্ধ। হাসান মণ্ডল। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিলে? পানিবাড়ি থেকে যাচ্ছিলাম খারামারি বেরিয়ে। কি নিয়ে? গরু নিয়ে। কত গরু ছিল? 6টা। কতজন ছিল তোমরা? 10 জন। হ্যাঁ, 10 জন। কজন ভারতীয়, কজন বাংলাদেশি? 6 জন বাংলাদেশি, ভারতীয় 4 জন। গরু কটা ছিল? 6টা। তুমি আহত হলে কি করে? আমি আহত হয়েছি। আমি যখন যাচ্ছিলাম ব্রিজ তলার থেকে, পুলিশ ওপরে ফায়ার করছিল, নিচে ফায়ার করে দিয়েছে। কারা ফায়ার করেছিল? তোমাদের তরফ থেকে তো বোমাবাজি হয়েছে তো? হ্যাঁ, আমি সামনে ছিলাম, এবং পেছনে আমি দেখতে পাইনি। কারা বোম মারলো? কারা পেছনে যারা, আমি তো সামনে ছিলাম, পেছনে কারা কারা ছিল না, কিন্তু সম্ভব বাংলাদেশের লোক মেরেছে। বাংলাদেশিরা বোম মারলো? হ্যাঁ। বাংলাদেশি কজন ছিল? 6 জন। কতদিন ধরে এই কাজ করছো তোমরা? আমার এটা সেকেন্ড টাইম। ফার্স্ট টাইম গিয়েছিলাম 2 মাস আগে, আর গত রাতে গিয়েছিলাম। কোন কোন বর্ডার ব্যবহার করো তোমরা? আমি একই জায়গায় 2বার গেছি। কোন বর্ডার এটা? পায়রামারি। কিভাবে যাচ্ছিলে? কিভাবে? কোনো মানে কিসের উপর দিয়ে? এটা জলের মধ্যে, জলপথে? কোন নদী? কত করে খেতে? 1000 টাকা। কটা গরু ছিল? 6টা। গরুগুলো কি পাস হয়ে গেছে বাংলাদেশে? না, গরুগুলো কোথাকার? গরুগুলো আমাদের ওখানকার যাত্রী। চুরি করে গরু নাকি কেনা? কেনা গরু, ওদের এলাকার টাকায় কেনা টাকা গরু। বাকিরা কোথায় গেল? তোমার সঙ্গে সঙ্গে যারা ছিল বাকি 9 জন? তারা পাঠিয়ে গেছে। এই গরুগুলো কত টাকা করে বিক্রি করছিল বাংলাদেশি টাকা? এটা কোনো সময় জানে না, কারণ আমি জন, যারা মহাজন তারা জানে। আচ্ছা, তোমার সাথে কজন ছিল? তারা পালিয়ে গেছে? কাদের হয়ে কাজ করতে? কাদের হয়ে কাজ করতে? আমি এখানকার বন্ধু বান্ধব ছিল, কাজ। নাম কি তাদের? না, ওই শেরু। হ্যাঁ, শেরু। আর তার কি কারবার? ওই ব্যবসায় করে। আর নাম কি? সাহা, রবু, আর আমি। আচ্ছা, বলছি এই যে গরু পাঠাচ্ছে নিয়মিত করতে নাকি শুধু কালকে? না, আমার এটা সেকেন্ড টাইম হচ্ছে। ফার্স্ট টাইম আমি 2 মাস আগে গিয়েছিলাম। তখন বিএসএফ কটা দলে ভাগ হয়েছিল? তোমরা কটা দলে ভাগ হয়েছিল? কটা দলে বলে বুঝতে পারলাম না। কজন ছিল দলে? দলে ছিলাম আমরা যে ইন্ডিয়ান 4 জন ছিলাম, ওই 4 জনে আমরা চলে এসেছি। বোম কত ছিল তোমাদের কাছে? বোম এটা অবশ্য আমার জানা নেই। পেছনে যারা ছিল বাংলাদেশিও, তাদের কাছে ছিল। বোমটা কারা মারলো? বাংলাদেশিও মেরেছে। আর কি ছিল তোমাদের বোমের সাথে? আর কি অস্ত্র কি ছিল? তা জানি না। আচ্ছা, বর্ডারে পৌঁছানোর আগে পুলিশ কোথাও ধরে না? হ্যাঁ, ধরে তো। কিভাবে পৌঁছাও সেটা? ওই চুরি করে করে যেতে গ্রামে গ্রামে। কখনো পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে?
আর দেখেন আমি 2বার গেছি, বেশি তো যাইনি। এই গরুগুলো 2বার আমার আসছিল কোনো রকম অসুবিধা হয়নি, চলতি পথে। কি নাম তোমার? হাসান মান্ডা। তোমার কি লেগেছে গায়ে যে ক্ষত হয়েছে? সররা লেগেছে, হ্যাঁ একটা গুলি লেগেছে আর বাকি সররা। গুলি লেগেছে? কোথায় লেগেছে গুলি? हरकत हुई है और क्या क्या आपने मेरा मतलब ये सीमा नगर के अंदर हमारी बटालियन डिप्लॉयड है 68 और कृष्णा नगर सेक्टर के अंदर में ये बटालियन आती है। और ये इलाका जहां आप खड़े हुए हैं ये इच्छामती रिवर का इलाका है। यहाँ से कल रात में तकरीबन 3 बजे इंडिया और बांग्लादेश के स्मगलर्स मिलकर स्मगलिंग करने का कोशिश किया। आपने इस इलाके में देखा है कि बॉर्डर के रोड तक यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इसीलिए कई बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऊंचे पेड़ इतने नज़दीक ना लगा जाए। इन पेड़ों के बीच में ही आकर स्मगलर पार्टी जो है वो छुप जाती है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर में स्मगलर्स को क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है फेंसिंग होने की वजह से, तो जो भी ओपन गैप है बड़ी टैक्टिक्स के साथ ये स्मगलर पार्टी स्मगलिंग कर रही है। इनके अंदर में एक पार्टी आती है जो कि पहले से पत्थर वगैरह इस्तेमाल करती है। आपने देखा होगा झोले आपको दिखाई दिए हैं जिसमें पत्थर ये बटोर के लेके आते हैं। इस पार्टी का काम होता है कि जो हमारे एसीपी के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं ड्यूटी करने वाले, जैसा कि इस ब्रिज के ऊपर भी कल रात में 2 लोग थे। सबसे पहले इस पार्टी को पहली बात तो धोखा देकर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकलने की कोशिश की जाती है। अगर ये पार्टी नोट कर लेती है तो इमीडिएटली इसके ऊपर पथराव किया जाता है। लेकिन कल ताज्जुब की बात है कि पथराव के साथ साथ इस पार्टी के ऊपर पे कंट्री मेड बम भी फेंके गए। कंट्री मेड बम के अलावा इन्होंने इसके अंदर में मिक्स किए दिवाली वाले क्रैकर्स भी, तो तकरीबन 13 फटे यहाँ पर आकर। और आपने ब्रिज के ऊपर पे देखा होगा पूरे पे पत्थर बिखरे हुए हैं, जिसमें हमारा एक लड़का भी थोड़ा इंजर्ड हुआ है, विजय नाम का, जिसके हाथ में पत्थर लगा है। और इस पार्टी ने ब्रिज के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश की, जहाँ से ये खतरा हो जाता है हमारे लड़कों को कि इंजरी है, क्योंकि ये जो कंप्लीट गोरू पार्टी थी ये हमारे एसीपी पार्टी के बीच में फंस गई। तो इनको पता था कि हम नीचे जाके उनको रोकेंगे, तो उसी में जो अपने आप को बचाने के लिए हमारे लड़कों को फायर करना पड़ा, जिसमें कि पीएजी एक वेपन हमें दिया गया है नॉन लीथल, जिससे कि किसी की जान ना जाए, लोगों को डर है। तो शायद स्मगलर पार्टी को पता है कि इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, इसलिए ये इतनी हिम्मत कर लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब देखा गया है तो ऐसे समय पे गाली देकर वो बोलते पटाखे फोड़ते रहो, कुछ नहीं होता। तो उसकी एक इंडिविजुअल को इंजरी हुई है। ये लड़का दत्ता पुलिया का है, इंडिया साइड से। अब रात में ये इधर से तो बांग्लादेश भाग गए, सारे के सारे तकरीबन 10 से 15 लोग थे, और हमारी उम्मीद है कि 10 से 12 गोरू थे पीछे जिनको ले जाना चाह रहे थे। उसके बाद में जो ये लड़का अंदर बांग्लादेश साइड में चला गया है, वापस बांग्लादेशी स्मगलर्स ने इसको खींच के ले गए हैं बांग्लादेश के अंदर में। और हमारी एक और 8 बटालियन एरिया है जहाँ पर फेंस नहीं है, उस जगह पे लाके इसको छोड़ दिया और बोला तुम अभी बांग्लादेश इंडिया साइड चले जाओ, तुम इंडियन हो। क्योंकि इनको पता है हमारा बीजेपी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है हम त्वरित बीजेपी को इन्फॉर्म करते हैं और बीजेपी भी जो है एक्शन में आ जाती है। तो इनको हमारी ये एक्शंस पता है। तो ये अंदर आते हुए सवेरे हमारे ओपी ने देखा, तो उस लड़के को भी हमने जब उसे पकड़ा तो उससे हमें सारी कहानी पता लगी कि आप लोग उससे मिल चुके हैं। अभी हमने इमीडिएटली उस लड़के को FIR लिख के इवैक्यूएट कर दिया है, जैसे कि उसे तुरंत हमने फर्स्ट एड दे दी थी हमारे पास। और अभी वो लड़का जो है पुलिस के हवाले ठीक है। करते हैं। हम उसको बिल्कुल पुलिस के हवाले, हमारा जो तो कितने कैटल इस मेरा मतलब हमने यहाँ पर अभी 3 कैटल सीज किए हैं। इसके अलावा में शायद 2 कैटल ये पार ले जाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, और बाकी जो 3-4 कैटल पीछे थे वो पीछे ही यहाँ से तो हर रोज का ये दिक्कत होती है। हो रहा है। हाँ, बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। जो आप हर रोज़ हरकत की बात बता रहे हैं, शायद इसलिए कि ईद सामने है, इसलिए बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गई है। जितने भी हमारे ओपन एरिया हैं उस जगह से तो निकाल ही रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि कल शाम को 7 बजे तुंगी हमारा एक इलाका है जहाँ पूरा फेंसिंग है। पिछले 4 दिनों के अंदर में उसमें 2 बार फेंस को बड़े हिस्से को काट कर बांग्लादेशी और इंडियन स्मगलर्स ने वहाँ से भी गोरू निकालने की कोशिश की। कल शाम को 7 बजे हमारे लोगों को डिच करके, क्योंकि ड्यूटी में 2 आदमी रहते हैं, दे हैव सक्सेसफुली ब्रीच फेंस और एक बहुत बड़ा 3 फीट का चौड़ा रास्ता बना के
पूरी फेंस को पार करके 3 करीब गोरू वहाँ से निकाल लिए हैं। तो ये चैलेंजेस अभी हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं और जब भी कभी पाकिस्तान का खेती जो है बॉर्डर के बहुत नज़दीक हो जाता है या हाई रॉस क्रॉप बॉर्डर के नज़दीक होते हैं तो इनका हिम्मत जो है बहुत बढ़ जाता है। तो इसका नाम क्या है सर जिस पे पकड़ रहे हैं? इसका नाम हसनैन मंडल दत्ता पुलिया। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, मैं DIG कृष्णा नगर और मेरे नीचे यहाँ पर 5 बटालियन है और मैं पूरे बॉर्डर के एरिया का DIG। নদিয়া থেকে সুব্রত কুমার চ্যাটার্জির রিপোর্ট snewsbangla.com। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। যদি সাবস্ক্রাইব করা থাকে তাহলে চ্যানেলটি শেয়ার করতে ভুলবেন না।